evening, everybody. I'm your host, Misha Bajwa Chaudhary, and I welcome you all to News 18 initiative La Aspiration, co-presented by Elegant TMT and RTDC, powered by JKJ and Sang Jewelers, co-powered by Wonder Cement and Reliance Industries Limited. Hospitality partner, HRH Group, associate, Shree Cement, DP Jewelers and Udaipur Dairy. Banking partner, AU Small Finance Bank Limited. Education partner, Madhav University. Healthcare partner, Gitanjali Hospital. Driving partner, Skoda Jay Cars Private Limited. Ladies and gentlemen, the goals of aspirations have undergone change. How? Well, the experts shall tell. Today we'll be meeting, commending and applauding some of the finest personalities of India from varying backgrounds who will help us understand how approachability and accessibility, yes, approachability and accessibility are the words that describe the new world order. And to kickstart our first session of this evening, may I please invite on stage Ms. Astha Kaushik, who will moderate this session for us, or Mr. Alok Mulya, Head of Product and Communications, Brand Banking, AU Bank, or Mr. Sunil Mosul, Director, JKJ Jewelers. जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दोनों मेहमानों के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रॉयल्टी लग्जरी। इससे पहले हम बात करें कि बैंक्स और ज्वेलरी ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए हैं और लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं इस लग्जरी और ट्रेंड को अचीव करने में। उससे पहले मैं चाहूंगी आप दोनों डिफाइन करें कि आपके लिए लग्जरी का मीनिंग क्या है। देखिए, जो लग्जरी का अर्थ मेरे हिसाब से ये है कि जो पीस हमारे पास में है उसकी एक वैल्यू, एक तौर तरीका कुछ अलग हो, कुछ बिल्कुल हटकर हो, कुछ अपने अंदाज में अलग हो। सुनील जी, Luxury to me is all about experience and exclusivity. आज लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग रॉयल्टी चाहते हैं, ट्रेंड चाहते हैं, तो बैंक्स का क्या रोल है? Honestly, banks have become integral part of everybody's life, and there are premium banking programs which evolve around ensuring that the customers get access to various luxuries in life. Our AU IB program, which we are showcasing today, is such invite-only program. In this program, our customers get access to memberships of Taj, membership of Wall Street Journal. So programs like this are what banks enable customers to access life towards luxury. आज के ट्रेंड को बदलता हुआ आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी? देखिए, जेकेजे जो है एक सोच है, एक परंपरा है, एक विश्वास है। जो ज्वेलरी जो है उसमें सबसे मेन चीज होती है शुद्धता, उसकी प्योरिटी, उसकी स्पिरिचुअलिटी। उन सब चीजों के अंदर में हर अपनी एक खास बनाती है हर एक प्रोडक्ट। जैसे जैसे समय निकल रहा है, देखिए आज का जो यूथ है उसको भी ये पता चल गया है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो स्वर्णाभूषण की चमक है वो डबल फायदा दे रही है। मतलब कहते हैं श्रृंगार का श्रृंगार और जरूरत का आधार। आलोक जी, आपके लिए आज का दिन ला एस्पिरेशनल समिट इतना स्पेशल क्यों? So AU Small Finance Bank is rooted in Rajasthan. It was founded in Rajasthan way back in 1996, and it grew up in Rajasthan. And honestly, Darbar Hall is an icon of exclusivity. It's an icon of glamour. So what better place to have this forum to showcase a product called Ivy, which is an embodiment of luxury, embodiment of exclusivity, and embodiment of access to experiential living. So in that context, I would say it's a brilliant place for us to showcase our product. अब एक सवाल मेरा आप दोनों से है, ज्वेलरी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर गोल्ड बिस्किट्स जो बैंक ऑफर करते हैं? Jewelry definitely is a very good investment. I would not deny that. But when you look at a pure investment, that's when other banking products like your investments, AUM, term deposits, higher rate on savings, and all these things come in. So दोनों ही अपने जगह पर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बहुत ही क्रिटिकल है. So that's how I think it's developing in India. सुनील जी, इंडिया में तो कभी ये डिमांड देखिए क्या होता है, देखिए हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो जो अर्बन और रूरल सेक्टर है, आप देखिए जो हमारे इधर जो गांव की आबादी है, आज इंडिया का आप देखेंगे तो हम डिपेंड है किसान पर। तो आज जो भी किसान है जो खेती कर रहा है उसका मेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, आलोक जी, सुनील जी। Thank you so much. Thank you.
मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर मिस्टर सिद्धार्थ नेवटिया जी। And now let's move towards our next session of the evening, Breaking Barriers. And to moderate this session, may I please invite on stage Mr. Amish Devgan, Managing Editor है News 18 Network में, और उनके साथ साथ मैं जो moderate करेंगे इस session को मिस सौम्या टंडन। सौम्या जी एक्टर हैं और कमाल की एक्टर हैं, और अब मैं invite करना चाहूंगी हमारे मेहमान को जो इस सेशन के लिए मंच पर आएंगे, महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी। मेवाड़ जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान का स्वागत कीजिए। लक्ष्यराज सिंह जी is the descendant of the 1500 years old house of Mewar in Udaipur. He started his career from scratch and later returned to Udaipur and joined his family business. He is executive director of HRH Group of Hotels. तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। जोरदार तालियां इनके लिए, इनके वंश के लिए, क्योंकि ये आते हैं महाराणा प्रताप के वंश से। सर, तो शुरुआत करते हैं कि कल्चर हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इसको अपने नजरिए से देखते हैं, अपने परिवार के नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम, और खास तौर पे आपको कि आज आपने हम लोगों को लायक समझा, और सबसे पहली बात तो ये कि सोच को आपने एक मंच दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अपन हेरिटेज कल्चर और टूरिज्म की बात करते हैं, और उसको मैं इसी सभाकार से सबके सामने जो है वो उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। ये सभाकार वो सभाकार है सर जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई थी। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ एक्सेशन दैट वाज साइंड इन दिस वेरी हॉल। जब जाकर एक आजाद भारत बना, और हमको बड़ी खुशी होती है कि हम लोग उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने वो पहले चंद कदम उठाए इस खूबसूरत देश भारत को बनाने के लिए। और उसी सोच के साथ में जो है आज न्यूज 18 और जो है आज अपनी कॉन्फ्रेंस भी इसी सभागार के अंदर करता है, उसके अंदर भी मुझे उतनी ही खुशी होती है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में और आज के वक्त में आप रॉयल्टी की क्या रोल आप बताएंगे? मैम देखिए, इसके अंदर ये एक टाइपकास्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों ने जहनी तौर के ऊपर अपने खुद के जो है वो ख्याल बना लिए। लोग जो थे अक्सर पहले जो है वो सब एक साथ चलते थे। मेवाड़ हमेशा से सबको साथ में लेकर चला है। इससे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। पर समय जो है वो एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है कि कभी ठहरता नहीं है, चलता रहता है। उसके हिसाब से हम लोगों को भी बदलना जो है वो जरूरी है। आज हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा। आज जितनी भी शिक्षा की जो संस्थाएं थी वो आज भी वैसी की वैसी चल रही हैं। हम देखते हैं कि कई बार खास ओकेजन होती है तो आप लोग कुछ खास तरह के कपड़े डालते हैं। तो डू यू थिंक आज के जनरेशन में उसका रेलेवेंस है, और डू यू थिंक कि उसका उतना रेलेवेंस नहीं रहा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेशभूषा जो है वो एक मिट्टी की पहचान। तो आज हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डालना चाहते हैं, पोस्ट डालना चाहते हैं, हम बेशक हमको डालनी चाहिए और बिल्कुल डालनी चाहिए, पर इस संस्कृति और कला की जो जिम्मेदारी है वो केवल एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो हर एक भारत के नागरिक की है कि जिस जगह से वो है। भाषा के साथ में भी यही है। आज अंग्रेजी भाषा के अंदर हम बात करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी भाषा है जो आज की तारीख में हमारे को दूसरी देश और दुनिया से जो है वो जोड़ती है। पर क्या वो इस कीमत के ऊपर आनी चाहिए कि हम हमारी भाषा को छोड़ दें? एक बात बहुत खूबसूरत जो हमारी संस्कृति हमारे को उदाहरण के ऊपर देती है वो यह है कि अंग्रेजी जो है वो ए पर एप्पल पे शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। हिंदी जो है अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। इन्होंने अपने बर्थडे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? देखिए सर, ये कोई नया काम या अनोखा काम नहीं है। देखिए, जो काम मेवाड़ 1500 साल से करता हुआ आया है, जो मेरे पुरखे हजारों सालों से करते हुए आए हैं, उसको आज हम लोग एक गिनीज रिकॉर्ड के जरिए में देखते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे नाम पे 7 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? सर, शुरुआत बड़े सीधे सीधे तौर के ऊपर दादाश्री ने करी, और ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब
देश आजाद हुआ, फिर हम लोग भी काम ढूंढने लगे कि अब हमको करना क्या है और इस जगहों को, धरोहरों को जो है वो बचाना कैसे है। तो फिर दादाश्री ने जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सोच के ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि अपन होटल्स के ऊपर काम करेंगे। तब लोगों की क्या आलोचना आई कि अब राजे महाराजे जो है वो झूठे बर्तन धोएंगे। इस चीज से शुरुआत हुई थी और उस सोच ने जो है कि अब झूठे बर्तन दोनों की जो सोच थी, वहां से जो है उसके अंदर से जन्म हुआ लेक पैलेस होटल 1962 के अंदर। पिताश्री ने उस सोच को और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हम लोगों ने भी उसके अंदर सहयोग करना जो है चालू किया। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि हमारी संस्थान को 20 साल हो गए सर कि वी आर विनिंग द नेशनल हेरिटेज अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 20 इयर्स इन अ रो टुडे। क्या चीज है जो आप अभी बदलना चाहते हैं? मैं ये मानता हूं कि लोगों को जो है अगर कुछ अपने बारे में चीज खटकती हो या नहीं अच्छी लगती हो तो वो चीज उन लोगों को बदलनी चाहिए। और अगर एक एक करके अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हमारी त्रुटियों को या हमारी कुछ चीजों को अगर हम लोग बदल जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि शहर ही नहीं, गली ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये दुनिया जो है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आप लग्जरी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? वक्त सर। वक्त, टाइम। जी। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, बहुत सुंदर आंसर है वाह, ये। क्या बात। मेरे को जो 2 पंक्तियां थी कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मुझे लगता है कि वक्त की आपने बात करी और वक्त भी हो गया है। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। जोरदार तालियां लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ साहब के लिए। मैं अमीर जी से और सौम्या जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मेहमान को एक छोटा सा टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ। It's Walk of Fame, and for this session we'll have Manya Singh ji on stage. She's coming from a very humble background. She's become Miss India 2020, and now may I please invite on stage Astha, who will be moderating this session. बहुत सारी बातें करनी है माने आपसे, लेकिन क्योंकि आज हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप इसे अपनी तरह से डिफाइन करें। मेरे लिए मेरी लग्जरी मेरे पापा की ऑटो है, क्योंकि इफ आई कांट अफोर्ड कार, मेरी ऑटो मुझे थोड़े टाइम में मुझे बहुत दूर तक पहुंचा देती है। जोरदार तालियां। आई थिंक मेरे लिए सिंपल डेफिनेशन है कि आपके पास जो भी है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, खुश हो, और वो आपको अगर इजी वे ऑफ लाइफ देती है, तो दैट आई थिंक एवरीथिंग इज लग्जरी फॉर यू। कैसे एक सिंपल सी लड़की का सफर जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंचा? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सपने देखो मान्या, अगर सपने देखोगी तभी आगे जा पाओगे। आई जस्ट केम टू बॉम्बे, एक कुछ मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे मिस इंडिया करना है। इट वॉज वेरी बेसिक थिंग कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर शायद मैं यूपी में छोटे से गांव में रह जाती तो मेरी शादी हो जाती, शायद मैं वो भीड़ में खो जाती। मैंने खुद को अलाउ नहीं किया वो। इट वॉज नॉट अ प्लान, बट आई थिंक गॉड गेव मी दैट वे टू वेयर दैट क्राउन, बट नॉट जस्ट फॉर मी, बट फॉर द गर्ल्स, फॉर द women who wants to dream no matter where they come from. कंटिन्यूटी बनाए रखी। Yes. करना है तो करना है। Yes. बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप फैशन और ग्लैम वर्ल्ड में हैं, तो ऐसे में लग्जरी, सिंप्लिसिटी, कंफर्ट, इसका बैलेंस कैसे रखते हैं आप? आपके कपड़े आपको कैरी नहीं करते, यू कैरी योर क्लोथ्स। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू वेयर, जस्ट बी योर सेल्फ। आपकी अपनी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, ना कि आप इतना खुद को हैवी कर लो कि आप खुद को ना दिखा पाओ। मानिया की हॉबीज क्या है? आई राइट 2 लाइन्स। सो जब मैं जीती थी तो मैंने यही कहा था कि तो खुद की खोज में लिखल, तो खुद किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। कब डिसाइड किया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है? मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, एंड जब मैं उनको पता था आप कंटेस्ट में जा चुकी हैं? नहीं, मैंने कम से कम 6 साल ट्राई किया था, एंड आई फेल्ड एवरी टाइम। जब आप गांव से ऐसे घर छोड़ के आते हो ना, तो कहते हैं ना कि सोसाइटी कह देती है कि अरे लड़की तो हाथ से निकल गई है, अब क्या करेंगे। Correct. माँ बाप का नाक कटा दिया है। अगर मेरे सर पे क्राउन होगा और मेरा होम कमिंग होगा, तो शायद जो रिस्पेक्ट मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की गई है वो वापस आ सकती है। और 2016 से ट्राई कर करके 2021 में मेरा क्राउन हुआ था। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप उन लड़कियों को या उस यूथ को कुछ टिप्स देके जाएं जो छोटे शहरों में हैं। पैर लंबे करो लड़कियां और लड़के सबको, चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी। ड्रीम बिग,
अगर आप सपने बड़े नहीं देखोगे ना तो शायद आप वो कुएं में ही रह पाओगे. So I will tell one thing, just work hard and keep working hard and be consistent. Whatever you want, you will achieve. And that's Wish you all the very best, Thank you Manya. so It was much. lovely talking to you. Thank you you, so thank much you, for coming thank here. you. I invite on stage Mr. Siddharth Nevatia, National Revenue Head, Hindi Cluster Network 18, and Mr. Sunil Mathur, RTDC. मैं चाहूंगी कि आप दोनों हमारी मेहमान को एक छोटा सा टोकन हमारी तरफ से भेंट करें. The name of the session is Queen of Hearts, and please put your hands together for Soumya Tandon. और सौम्या जी के साथ ही मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मेरी साथी आस्था को. तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए, भाभी जी स्टेज पर हैं. सौम्या, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी अपनी एक लीगेसी रही है, तो उसको लग्जरी के साथ आप मर्ज करके क्या बताना चाहेंगी? मैं एकेडमिक और आर्ट और लिटरेचर के बैकग्राउंड से आई, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो मुझे स्वतंत्रता मिली ये चूज करने की कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाऊं, दैट इज लग्जरी. मैं ग्लैमरस होने के बावजूद एक बहुत ही साधारण वाइफ और बहुत ही नॉर्मल माँ हूँ, ये मेरे लिए लग्जरी है. द पावर टू चूज. आपको एक्टिंग विरासत में मिली है या कह लीजिए कला विरासत में मिली है, अब इस लीगेसी को कैसे बढ़ा रही हैं आप आगे? I would like to work in this industry with dignity, and I hope I get the opportunity and chance to do good projects. That is what I actually aim to do. आपके फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि अब कौन से प्रोजेक्ट्स में वो आपको देख पाएंगे? एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, जिसकी शूट हम अप्रैल में शुरू करेंगे. वो एक प्रोजेक्ट है, दैट इज एक्चुअली समथिंग विच आई हैव साइंड एंड आई नो आई एम गोइंग टू बी शूटिंग. बाकी जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे आई एम श्योर आई विल से इट इन द मीडिया. सब जानते हैं आप खुद एक फिटनेस आइकन भी हैं, लेकिन हर फिटनेस आइकन की भी कोई इंस्पिरेशन होती है, उसका भी कोई फिटनेस आइकन होता है. आपके लिए वो शख्स कौन है? मेरे ख्याल से मेरी फिटनेस आइकन मेरी माँ है. वो इसीलिए क्योंकि पिछले 25 सालों से वो रोज सुबह 5:30 बजे उठकर 2.5 घंटा योगा और मेडिटेशन करती हैं और आप बहुत ही सात्विक खाना खाती हैं, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को सिंपल और सिंपलिसिटी से जीती हैं. आई फील शी इज माई आइकन. जाते जाते आप क्या फिटनेस टिप्स देकर जाना चाहेंगी, स्पेशली उन लड़कियों को जो आजकल वेस्ट से इंस्पायर होके साइज 6, साइज 4 ये सारे नंबर्स अचीव करने की कोशिश में लगी रहती है? मैं उन सब से ये कहना चाहूंगी कि वो खुराक अपनाएं और वो लाइफस्टाइल अपनाएं जो आपको 80 साल में भी खूबसूरती से एज करा दे. सौम्या टंडन इसके लिए क्या कर रही हैं? मेरी बहुत मॉडरेट लाइफस्टाइल है. मैं डेफिनेटली व्यायाम करती हूँ, बहुत सादा शाकाहारी खाना खाती हूँ और मैंने 3 सफ़ेद चीज़ों से परहेज किया है: सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद दूध और मैदा. That's my mantra. Thank you so much, Soumya ji. Right on stage, Mr. Aditya Tandon, Vice President, Brand and Marketing, News 18 Network, and Mr. Pratim Tamboli, CEO, Gitanjali Medical College and Hospital. आप दोनों काइंडली मंच पर आएं और सौम्या जी को हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना भेंट करें. All right, and now let's dive right into the last session of the evening, royalty and poetry. सबसे पहले इस सेशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अमीश जी को. And now may I please request our guest. He's a poet, an actor, an entertainer, and a writer. शैलेश लोधा जी. बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए तारक मेहता जी का. शैलेश जी, आपका अभिनंदन है. बहुत बहुत शुक्रिया अमीश आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, एक्टर भी हैं जी. तो दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन है? कविता. इस सवाल के लिए तो आप मुझे नींद में से उठा के भी पूछेंगे और या मैं नींद बेहोशी में भी होऊंगा तो कविता मेरी आत्मा है, अभिनय तो मेरा शरीर है. राज परिवारों की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी हम राज परिवारों को देखते हैं, रॉयल्टी को देखते हैं. उसमें इतना बड़ा फर्क दिखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप मुंबई से आते हैं इसलिए मेरे मन में ये सवाल उठा. नहीं अमीश, ये सवाल बहुत बढ़िया है. सिर्फ राज परिवारों की छवि के बारे में नहीं है. फिल्म हमें जिंदगी से दूर ले जाती है, उनका काम यही है. आप कुछ भी देख लीजिए ना, वो जिंदगी में कहाँ होता है. आपकी जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता.
जिंदगी में आपने मोहब्बत की होगी, आपने कभी पेड़ के साथ पास जाके अपनी प्रेमिका के साथ गाना गाया। तमाम वो चीजें जो वहां दिखाई जाती है वो इसलिए दिखाई जाती है कि आम आदमी की जिंदगी में नहीं, वो देख के उसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। देखना है कि क्या होते हैं राज परिवार के लोग, तो इनसे आके मिल लेना चाहिए। एक बार लक्षराज सिंह मेवाड़ से मिल लें, उन्हें पता चल जाएगा कि आम इंसान क्या होता है। बात करते हैं लेखनी की, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है समाज के लिए? कि समाज जहां बोलना बंद करता है, कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। गूंगे समाज की भाषा है कवि। अगर कविता नहीं है तो जीवन नहीं है। एक किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आप मित्रता पर भी काफी लिख चुके हैं, आप बेटियों पे बहुत लिखते हैं। बहुत सी बातें कही जाती है कि राजस्थान में बेटियों को पुराने युग से ही उतना बड़ा अधिकार नहीं मिलता जितना बाकी पूरे प्रदेश में मिलता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, जो देखिए समय बदल रहा है और बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो कौन अंतरिक्ष में जाके कल्पना चावला बनेगा? अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो कौन इंदिरा गांधी बनेगा, कौन सुषमा स्वराज बनेगा और कौन लता मंगेशकर बनेगा? आप कहते हैं मैं बेटियों पे लिखता हूं, मैं माँ पे लिखता हूं। मैंने इसलिए लिखा कि मैं बहुत ईमानदारी से मानता हूं कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, नारी हम लोगों से बेहतर है। मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती। मैंने एक बार कहा था, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। ये कविता, इसमें माँ शब्द था, आप उस माँ को सिर्फ नारी से बदल दीजिए। तब मैंने कहा था कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कणिका है, हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार हैं वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा हैं वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही नारी की परिभाषा। बहुत खूब, बहुत खूब। वी आर डिस्कसिंग रॉयल्टी आल्सो। तो एक सामान्य, मैं युवा पीढ़ी के बारे में ये सवाल पूछना चाहता हूं, वो एक रात में रॉयल होना चाहते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? एब्सोल्युटली, ये आप बहुत सही सवाल किया है। जो जल्दबाजी है ना, और उसके लिए परिश्रम नहीं करना है। वो चाहते हैं कि हमारे तो रातों रात हम बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पे बैठे हो और 15 सवाल के उत्तर हमें आते हो जी। ऐसे नहीं होती है जिंदगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। कभी आपको किसी राजा पे लिखने का मन करे तो किस पे लिखना पसंद करेंगे? राजस्थान के शूरवीरों में से एक। देखिए, महाराणा प्रताप पे निश्चित तौर पे, उनके सिवाय मुझे ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखता नहीं है कि जिसपे मैं बहुत बेहतर लिख सकूं। बिल्कुल आखिरी दौर में है तो माँ पर जो आपने लिखा है वो जरूर ये लोग नहीं, वो कविता बहुत लंबी है अमीश। मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, क्या करूं मैं सिर्फ 2 पंक्तियां ये सुना देता हूं कि एक लड़का था, ईश्वर से बहुत कुछ मांगता था, उससे नहीं मिलता था। तो एक दिन गया मंदिर में और मूर्ति के सामने चिल्लाने लगा, रोने लगा और चीत्कार करके कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी? ईश्वर से कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। While I invite on stage Mr. सिद्धार्थ निवटिया, नेशनल रेवेन्यू हेड है हिंदी क्लस्टर नेटवर्क 18 के, और साथ ही साथ अनिल जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी। अनिल मौसून, डायरेक्टर JKJ ज्वेलर्स। मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं ताकि हमारे मेहमान को अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। Thank you so much. And with that, this is your host Misha Bajwa Chaudhary signing off.